మా స్కూల్ సైన్స్ ఫేర్ కు లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించింది. నా పెద్ద మనవరాల్ని అన్ని వసతులతో క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తున్న స్కూల్లోనే జాయిన్ చేశాను. ఏ స్కూల్ సార్ అది? ఉల్లంపర్రు మాంటిసరీ స్కూల్. క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ లో నెంబర్ 1, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో నెంబర్ 1, స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1, క్యాంపస్ లో నెంబర్ 1. చదువులో, తెలివితేటల్లో, ఆలోచన విధానంలో, నాయకత్వ లక్షణాల్లో వారు ఏ రంగంలో ముందున్నారో గుర్తించి విజేతలుగా నిలపడమే ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ ప్రత్యేకత. పాలకొల్లు పట్టణంలో ఉన్నత విద్యతో పాటు భవిష్యత్తులో బాగా సెటిల్ అవుతున్న వారిలో అత్యధికులు ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ విద్యార్థులే. ఇలా అన్ని ఉన్న చోట మన పిల్లల్ని చదివిస్తేనే వాళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇక నుండి ఏ పిఆర్ఓ చెప్పినా వినను. ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీస్ లోనే చదివిస్తాను. మీ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు మాది బాధ్యత. అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి మాంటిసోరీస్ విద్యా సంస్థలు ఉల్లంపర్రు. ఫోన్ 222206. బ్రాంచెస్ రామారావుపేట. ఫోన్ 224200. కొడిగట్టు. ఫోన్ 228800. Hi children, this is Usha. Today I am going to say 10th class Hindi lesson हम भारतवासी. हम भारतवासी यानी we are Indians. इस कविता के लेखक है आरपी निशंक. इस कविता के लेखक हैं आरपी निशंक. इस कविता में मुख्य रूप से देशभक्ति के बारे में बताया गया है. Means here in this poem it was said mostly it was given importance for the affection towards the country. देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, बच्चों में उसे जगाने के लिए इस कविता को लिखा गया है. इस पाठ का उन्मुखीकरण इस प्रकार है. हमारे देश में बहने वाले अनेक नदियां हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा. इस प्रकार कई नदियां हमारे देश को सस्यश्यामल कर रहा है. उन सब नदियां बहकर हमारे देश में अनेक नदियां बहकर अंत में उसका अंत होता है समुद्र में ही विलीन होता है. Means there are many rivers flowing in our country. All those rivers at the end they will go and mix with the sea. So अनेक नदियाँ, जो भी नदियाँ हमारे देश में बहता है उन सब नदियाँ कहाँ विलीन होता है? समुद्र में. उसका अंत समुद्र में विलीन हो जाता है. और उसी प्रकार हमारे देश में अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं. कई प्रकार के धर्म है हमारे देश में. उन सब धर्मों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे परमात्मा के पास जाना है. There are many religions and many castes are there in our country, but their aim and their goal is only परमात्मा के पास जाना. It means to reach the God. कोई भी धर्म बड़ा या कोई भी धर्म छोटा नहीं है. यानी there is no religion which is great, there is no religion which is small. All the religions are equal. सब धर्म एक ही प्रकार है. उसी प्रकार मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है. कोई धर्म से किसी को अलग नहीं किया जाता है. यानी सब लोग समान रूप से इस देश में रहते हैं. यानी सब धर्मों का उनका अंतिम लक्ष्य है भगवान. उसी प्रकार हमारे देश में कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई धर्म छोटा नहीं है. सब मानव एक ही जाति का संबंधित है. इट मीन्स ऑल द पीपल इन अवर कंट्री आर इक्वल टू वन अनदर. नो वन इज बिग एंड नो वन इज स्मॉल इन अवर कंट्री. ये शब्द स्वामी विवेकानंदा ने बताया है. इट मीन्स दीज वर्ड्स आर सेड बाय स्वामी विवेकानंदा. सो किस प्रकार की नदियाँ अंत में कहाँ बह जाती है? समुद्र में. उसी प्रकार अलग अलग धर्म होने पर भी उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? परमात्मा के पास जाना है. और हम भारतवासी इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में गीत, एक गीत और कविता और गीत पाठ है. इसमें इसकी रचना शैली को बच्चों में बताने के लिए और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए, बच्चों में देशभक्ति की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अहिंसा, त्याग, समर्पण जैसे सद्गुणों को विकास करने का इस कविता का मुख्य उद्देश्य है. It means this lesson, this poem is just singing. We can sing this poem. To know the method of writing the poem, for the method of singing, in the method of singing,
and also to bring affection towards the country in the children. Along with that, Vishwa Bandhutva यानी all the people in the all over the world are equal. Vishwa Shanti, international peace. Same way ahimsa means non-violence. त्याग, sacrifice, samarpan, to give it to others, जैसे सद्गुणों को, all these type of good habits to bring out from the children. The main concept of this lesson is सेम वे भारत देश को अंतरराष्ट्रीय पर सशक्त करने और अग्रस्थान को बताने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये पद्य लिखा गया है. इट मीन्स इन द इंटरनेशनल वाइज द कंडीशन ऑफ द greatness of our country, and same way to give the highest peak for the country in the world, to give that type of inspiration to the children is the main concept of this lesson. और इस पद्य में मुख्य रूप से सामान्य भविष्य का वाक्य दिया गया है. It means the poem which was written, the lining in the poems are related to सामान्य भविष्य काल. और इस पद्य से बच्चों में त्याग, अहिंसा, सच्चे समर्पण, बच्चों का गुणों को विकास करना इसका विषय है. और बच्चों में विश्व बंधुत्व की ओर आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए. Means main importantly the sentences which were used in this poem were सामान्य भविष्य काल, and to bring out the qualities which were there in the children are that tyag, sacrifice, non-violence, truth, and to give it to faithfulness or sacrifice. All these qualities to bring out from the children is the main concept of this lesson, and also to give the importance towards Vishwa Bandhutva. यानी all the people in all over the world are equal, everyone in this world are equal. Same way उसकी ओर आगे बढ़ाने के लिए, it means to go, they are the children are the future generation, the citizens in the future. So to make them to go towards the Vishwa Bandhutva in their future is the main concept of this lesson. इस पाठ का हम भारतवासी कविता के कवि है आरपी निशंक. उनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक. आरपी निशंक का पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक. पे इस कविता हम भारतवासी कविता को मातृभूमि के लिए इस संग्रह से लिया गया है. मीन्स हिज फुल नेम इज रमेश पोखरियाल निशंक, एंड दिस पोएम हम भारतवासी वॉज टेकन फ्रॉम ए बुक मातृभूमि के लिए. मातृभूमि के लिए संग्रह से लिया गया पाठ है, ये कविता है, ये हम भारतवासी. ये आधुनिक हिंदी साहित्यकार है. आरपी निशंक आधुनिक हिंदी साहित्य. इट मीन्स ही वॉज ए मॉडर्न पोएट. इट मीन्स वट एवर ही राइट्स इन मॉडर्न पोएट, वो वे शब्द इस प्रकार होता है कि सामान्य लोग भी उसे समझ सकता है. In modern poetry we can see the words or the sentences which will be used will be very easy, which can be understood by even a normal person. उनका कविताओं का मुख्य विषय या मुख्य प्रतिपाद्य ये होता है कि देशभक्ति. Whatever he had written the poems and whatever the books he had written, main concept and main thing which he takes is देशभक्ति को, भावना को जगाने का मुख्य विषय होता है उनकी कविताओं में. उसी प्रकार उनकी मुख्य रचनाएं हैं समर्पण, नवंकर, मुझे विधाता ने बनाया, तुम भी मेरे साथ चलो, जीवन पद में चर्चित. इस प्रकार की कई कविताएं रचनाएं उन्होंने लिखा है. उनकी रचनाओं में विषय इस प्रकार होता है कि चर्चित रचनाएं लिखती थी. इट मीन्स that method will be in such a way that the people will discuss or take the decision from them. चर्चित करने का मुख्य विषय होता है उनकी रचनाओं में. यार पे it means he will give the matter in such a way that it will make us to think towards that. He will give inspiration in such way that we have to think towards the matter which or the concept which he says. That type of writings, it means poems he used to write आरपी निशंक. अच्छा,
हम भारतवासी का मुख्य विषय है कि भारत प्राचीन देश है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही प्राचीन है और सब देशों को लुभाती है। Our country is a very ancient country, and whatever the culture and the tradition in our country we are having, it is being attracted by all over the world. सभ्य संसार को, सारे संसार को लुभाती है। It is being attracted by all other the countries in the world. और इस यहाँ पर हम भारत में रहने वाले हर एक मानव के यहाँ पर कई सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्मनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों को कई लोग हमारे भारत देश में है। इट मीन्स इन अवर कंट्री वी आर हैविंग मेनी पीपल लाइक सत्यवानों, यानी सच को बताने वाला, हु आर वेरी ट्रूथफुल, अहिंसावादियों, यानी हु विल फॉलो दी नॉन वायलेंस, संतों, सूफियों, देर आर मेनी सेंट्स। सेम वे कर्मनिष्ठों, यानी हु विल कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क, कर्मनिष्ठों यानी काम, अपने काम को अपना भगवान समझने वाला व्यक्ति है। धर्मनिष्ठों यानी देर आर मेनी ट्रेडिशन रिलीजन्स इन आवर कंट्री टू फॉलो ऑल दोज। सेम वे देशभक्तों, देश को भक्ति, देशभक्तों, ये पद सुनते ही हमारे रोम सिहर उठते हैं। इट मीन्स इस प्रकार के कई लोग हमारे भारत देश में रहते हैं और इस देश में बच्चा बच्चा को इसी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है, इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। और बच्चों में इस प्रकार की भावना और इस मार्ग में चलने के लिए कहता है कि वे विश्व बंधुत्व और विश्व शांति, इन विषयों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ये मुख्य विषय रखा है। इट मीन्स टू मेक द चिल्ड्रन टू गो इन द पाथ और द वे ऑफ विश्व बंधुत्व और विश्व शांति। विश्व बंधुत्व यानी इट मीन्स यूनिवर्सल विश्व शांति, यूनिवर्सल पीस। विश्व बंधुत्व मीन्स ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इस प्रकार की भावनाओं को बच्चों में जागृत करना और उसी मार्ग पर चलने के लिए ही इस कविता का मुख्य विषय का प्रवेश है। हम भारतवासी कविता की कवि है कौन? आरपी निशंक। लेकिन मैं पद्य पढ़ूंगी सी। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे, हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। इसका अर्थ मैं ये बताती हूँ कि ऐसे हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। हम भारतवासी यानी वी ऑल आर इंडियंस, दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, दुनिया को पवित्र भूमि की तरह बनाएंगे। हम भारतवासी क्या करेंगे? दुनिया को पवित्र भूमि के तरह हमारे भारत को बनाएंगे। इट मीन्स वी एज द इंडियंस वी विल मेक आवर कंट्री एज द प्योर कंट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। We will give the good name for our country और the पवित्र धाम, धाम यानी पवित्र भूमि बनाएंगे। Means we all will make our country as the pure country in all over the world। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हमारे मन में जो भी श्रद्धा होती है, जो भी प्रेम होता है, उन सबको अद्भुत दृश्यों को हम दुनिया को दिखाएंगे। It means whatever the affections we are having in our country, प्रेम यानी प्रेम या सद्भाव, प्रेम के love and affection और the affection towards the elders or love and affection towards the others, all these type of good qualities we will show it to the world. It means here importance of our qualities as an Indians it was being said। ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे। ऊंच नीच का भेद, ऊंच नीच यानी कोई गरीब होता है, कोई धनवान होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बच्चा होता है, कोई इस प्रकार किसी अन्य प्रांत के होता है, कोई अन्य प्रांत के होता है।
इस प्रकार की कोई भेद होने पर भी whatever the differences we are having उन्हें मिटाकर we will wipe it away और दिल में प्यार बसाएंगे। हमारे दिल में उन सब के प्रति केवल प्यार ही रहेंगे, प्यार को ही दिखाएंगे। Means here it says that whatever the differences we are having, rich or poor, big or small, or will become to this area, that area, nothing differences we will have in our mind, and if any differences are there in our mind means we will wipe it away, उन भेदों को मिटाएंगे। It means we will wipe it those differences, whatever the differences we are having towards rich and poor, we will wipe it away और हमारे दिल में क्या रखेंगे? केवल प्यार ही बसाएंगे उन सब के प्रति। सब एक ही है हमारे लिए, सबके प्रति हम प्यार ही दिखाएंगे। इट विल मीन्स वी विल शो लव एंड अफेक्शन टू एवरीवन विदाउट हैविंग एनी डिफरेंसेस इन आवर माइंड। और नेक्स्ट, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस बरसाएंगे। नफरत यानी द्वेष, हमारे मन में किसी प्रकार की नफरत ना रखेंगे और हम उसे तोड़ कुहासा हम उन सबको हमसे दूर भगाकर और अमृत रस बरसाएंगे हमारे दिल में, या हम उसे अमृत की तरह उसे बरसाएंगे। इट मीन्स वॉट एवर दी नफरत, द्वेष, वॉट एवर दी एनिमिटी वी आर हैविंग, और इफ वी हैव एनी फाइट टुवर्ड्स एनीवन, देन वी विल लीव इट ऑल, तोड़ कुहासा। इट मीन्स वी विल ऑल ब्रेक इट अप एंड देन अमृत को हमारे जीवन में अमृत बरसाएंगे, अमृत को रखेंगे। यानी वॉट एवर दी एनिमिटी वी आर हैविंग विथ एनीवन, वी विल जस्ट make it pass away from our mind and we will make our life the heaven, like an heaven in our brain. Same way हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे। हमारे मन में सब लोग एक ही प्रकार नहीं जीवित रहता है, सबके लिए अपना अपने पर कुछ कष्ट होता है या दुख होता है, उन सबको दूर भगाकर वी विल मेक देम टू रन अवे और फिर विश्वास जगाएंगे। हम अपने आप को में विश्वास रखेंगे। मीन्स दैट एनी प्रॉब्लम्स वी आर हैविंग और एनी सैडनेस वी आर हैविंग, we will make them to run away from our minds and then we will bring confidence in our brain, फिर विश्वास जगाएंगे। whatever the confidence, Indians naturally will have the confidence, but if any problem is there or any sadness is there in our life means we will make it to run away from our brains and then we will bring the confidence in our brain. Means naturally we are having confidence and when we have the trouble also we will make it come up our confidence and we will wipe it away all the sadness. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। Being an Indians, we will make our country the pure country in all over the world. Already we are said here. Same way हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मिस हमारे देश को एक उन्नत स्थान देंगे दुनिया में। पहले पद में ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए और नफरत को दूर करने के लिए इस प्रकार के विषयों को लेकर बताया है। और दूसरे पद ये है कि उलझन में उलझे लोगों को तद्य दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पद से उनके राह दिखाएंगे। हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योति जलाएंगे, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। मीनिंग फॉर दैट इज उलझन में उलझे लोगों को, उलझन यानी ट्रबल्स, उलझे लोगों को who are facing those troubles, that type of people, तद्य दीप समझाएंगे। Immediately we will show them their neatness, I mean दीप, उनके जीवन में दीप समझाएंगे। It means here he says that जब भी हम उलझन में उलझते हैं, यानी when we are having troubles, when we are facing the troubles, immediately we will say them that there is happiness in future. मिस किस प्रकार दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार हमें कष्ट के बाद सुख और सुख के बाद कष्ट इस प्रकार होता है, उसी प्रकार के विषय को उन्हें बताकर
जब भी हमें कष्ट होता है, कष्ट सह रहे हैं, उसके बाद हम सुख आता है, उस प्रकार हम उन्हें लोगों को समझाएंगे। और नेक्स्ट, भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखाएंगे। जो भी लोग अपने जीवन को कोई लक्ष्य ना रखकर जीवन में क्या करना है इस प्रकार भटकता रहता है, उन लोगों को राह दिखाएंगे। उस प्रकार के व्यक्तियों को हम राह, विल शो द वे फॉर देम। इट मीन्स व्हेनेवर द पीपल faces the problem of there is no goal and there is no aim in their life and simply they will roam in the society without an aimless. So such type of people, for such type of people we will show the way for them and we will make them to go in the correct path in their way. Means भटक रहे जो जीवन पद से उनको राह दिखा। जीवन में जो राह, बिना राह के भटकने वाले व्यक्तियों को राह दिखाकर उनको मार्गदर्शन कराएंगे। और हम खुशियों से दीप जला जीवन ज्योति जगाएंगे। खुशियों का दीप जलाकर, यानी कोई भी कष्ट आने पर भी उनको सहकर हमारे जीवन में कष्ट करके खुशियाँ लाएंगे और उस प्रकार की जीवन ज्योति जलाकर हमारे जीवन को सुंदरमय बनाएंगे। It means we will bring happiness in our life and then we will glow the light of happiness in our life by solving all these problems. It means when we have the troubles, when we face the troubles, then we will show the correct aim for the people, and if anyone is aimless, and we will show the way for them. Same way, in this way, by solving the problems, we will glow the lightning of happiness in our life. And हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे। उस प्रकार की व्यक्ति है हम सब भारतवासी, और इन सब को सहकर हमारे दुनिया में हमारे देश को एक उन्नत स्थान दिखाएंगे या पवित्र स्थान के रूप में दिखाएंगे। इन दिस वे वी विल गो फॉरवर्ड इन अवर लाइफ एंड वी विल शो our country India the best country in all over the world and the pure country in all over the world. And next, ये पद्य कष्टों या बेराहों के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट पोएम इज मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे, सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे, जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। एंड थर्ड पोएम, तीसरा पद यह है कि मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हमारे मन में जो भी श्रद्धा और प्रेम है, जो भी प्रेम या भक्ति हमारे मन में है, उन सब की अद्भुत दृश्य, उन सब से एक अद्भुत दृश्य बनाकर हम दुनिया को दिखाएंगे। It means the people who are living in our country, the Indians, they are having to full of love and affection towards everyone. We will show that full of love and affection towards the world, and we will show a beautiful scenery for the world that Indians are very having a good love and affection. We will show this to the world. सेम वे सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे। बगिया में, ये बगिया यानी गार्डन, बगिया में सुंदर सुंदर फूलों से बगिया को सुंदरता और भी बढ़ाता है। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द ट्रीज विच वी आर हैविंग इन द गार्डन शोज द ब्यूटीनेस ऑफ द गार्डन। सेम वे इन अवर कंट्री, हम भारत देश में, भारत देश नामी बगिया में, हियर भारत देश को एक बगिया के रूप में कंपैरिजन, हियर ही हैड कंपेयर्ड इंडिया एज द गार्डन। उस बगिया में हम किस प्रकार का फूल रखेंगे? सत्य अहिंसा त्याग समर्पण, इस प्रकार के गुणों को हम भारत की रूपी बगिया में रखेंगे। सत्य यानी ट्रूथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, त्याग समर्पण to give it to everyone. These type of qualities which we are having in the garden of India, यानी भारत देश की पवित्र भूमि में इन सब गुणों को रखकर इसे पवित्र बगिया यानी एक सुंदर बगिया के रूप में बताया गया है। मिस सच अहिंसा त्याग समर्पण रूपी बगिया,
बगिया में यानी भारत देश की सुंदरता और भी यानी नाम भी और भी बढ़ाता है ये गुण भारतीयों में रहने के कारण। एज दीज क्वालिटीज आर हैविंग इंडियंस आर हैविंग, so the greatness and the beauty of our India still more increases। जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ये हमारे देश में ही ना रहकर हम सब जग में, जग यानी दुनिया, दुनिया के सारे क्लेशों में, दुनिया में रहने वाले कई तरह की समस्याओं को, जो भी कष्ट होता है दुनिया में, उन सब को मिटाकर दूर करके धरती को स्वर्ग बनाएंगे। हम पूरे दुनिया को स्वर्ग के रूप में बनाएंगे। जब हमारे बीच में, देशों के बीच में जो भी समस्याएं होता है, उन समस्याओं को सुलझाने से क्या होता है, हम सब एक के रूप में रहकर हम सब दुनिया में एक संतोष से रह सकता है। और उससे क्या होता है, जब हम खुश होता है तब वही स्थान स्वर्ग के रूप में मान सकता है। It means we will wipe away or we will whatever the problems we are having all over the world. It may be the problems towards the countries or some social problems we are having. Whatever they are having, we will solve those problems. And when there is no problem in the world, we all will be happy, and that is the place where we can say the heaven. When सब लोग खुशी है तो वही होता है स्वर्ग, यानी दुनिया को स्वर्ग बनाएंगे। ये सब हमारे हाथ में है, यह भारतीयों के हाथ में है। यानी जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे। इस प्रकार करके हम क्या कर सकता है, विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र, विश्व बंधुत्व यानी दुनिया के सारे लोग एक है, सब हमारे भाई बहन हैं। उस प्रकार की भावना को हम दुनिया में सरसाएंगे, दुनिया में दिखाएंगे, दुनिया में लाएंगे। यानी दुनिया, सारे दुनिया को हम अपना समझकर सब लोग हमारे भाई बंधु के रूप में मानकर विश्व बंधुत्व की भावना को सब दुनिया के सब लोगों में जगाना ही इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है। और ये गुण हम भारतीयों में है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी यानी इंडियंस, बीइंग एन इंडियंस, we will make our country a pure country towards all the and an example towards all over the world, the country, our country as the purest country, and we will have the love and affection towards everyone। मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। जो भी अफेक्शन, वॉट एवर द अफेक्शन वी आर हैविंग, लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एवरीवन, और सब लोगों को एक के रूप में रहने की या देखने की भावना हम में है। इन सब को इस पद्य में बताया गया है। इट मीन्स हियर ही हैड प्रूव्ड दैट आवर इंडियंस, वी ऑल आर हैविंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जो भी कष्ट हमारे जीवन में आता है उसके बाद सुख आने की आशा में रहते हैं। जो भी भेद हमारे बीच में है उन भेदों को मिटाकर हम सब भाई बहन के रूप में रहेंगे। उसी प्रकार बेराहों को राह दिखाकर और उसी प्रकार हम खुशियों को दीप जलाकर हमारे जीवन ज्योति बनाएंगे। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर हम भारतवासी पद्य में आर.पी. निशंक ने देशभक्ति की भावना को और भी बताया गया है। इट मीन्स ऑल दीज क्वालिटीज he has taken, that whatever the problems we are having, we will face it and we will make our country the great country throughout the world. And many qualities we are having like non-violence, truthfulness, faithful and samarpan, sacrifice. All these qualities we are having. With these qualities, our Indian garden is very beautiful, and we will show that our country is the great country towards the world. This feeling was brought and about the affection towards the country, R.P. Nishank has given in this poem with the poem हम भारतवासी। इस पद्य में अधिक रूप से when you coming to the grammar, mostly he had used the sentences in सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल, भविष्यत काल चार प्रकार के हैं।
फर्स्ट वन इज सामान्य भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, अपूर्ण भविष्यत काल और संदिग्ध भविष्यत काल। उनमें पहला है सामान्य भविष्यत काल। ये सब वाक्य आप देखें तो उसके अंत में, वाक्य के अंत में समझाएंगे, दिखाएंगे, जलाएंगे, बनाएंगे, दिखाएंगे, महकाएंगे, बनाएंगे, सरसाएंगे, ये सब पद क्या है? भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल को दिखाता है। इट मीन्स वी इन फ्यूचर वी विल डू इट, वी कैन डू इट इन फ्यूचर, दिस टाइप ऑफ फीलिंग। इट मीन्स ये सब पद सामान्य भविष्यत काल को दिखाता है। मुख्य रूप से इस पद में सामान्य भविष्यत काल में लिखा गया है। इस पाठ में कुछ पर्यायवाची शब्द मैं बताऊंगी जो भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, 10th क्लास एग्जाम्स। पर्यायवाची शब्द, फर्स्ट वन इज दुनिया। इसका पर्यायवाची शब्द है संसार, जग, विश्व, जगत, लोक, जगती, भव, भुवन, ये पर्यायवाची शब्द है दुनिया की। और सेकंड वन अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, अमी, पीयूष, सोम, अमी, जीवनोदक, ये अमृत पद का पर्यायवाची शब्द है। और तीसरा है पावन। इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है पवित्र, स्वच्छ, पुनीत, पाक, साफ, शुद्ध, ये पर्यायवाची शब्द है पावन के लिए। और प्राचीन शब्द की पर्यायवाची शब्द है पुराना, पुरातन, आदिम। और नेक्स्ट धरती का पर्यायवाची शब्द है भू, भूमि, पृथ्वी, अवनी, उर्वी, वसुधरा, धरा, धरित्री, धरित्री, विपुला, जगती, दात्री, धात्री, इस प्रकार की पर्यायवाची शब्द है धरती के लिए। These are very important for you for the exams. And mostly from this lesson you will be having हम भारतवासी कविता पाठ की सारांश लिखिए। सारांश, you can get it for the सारांश for 10 marks question. And mostly for सारांश you will give importance. And next one is R.P. निशंक कवि के बारे में लिखिए। R.P. निशंक की कवि के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। This question you can get it for the 4 marks question. And same way ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकता है, या उलझन में उलझे लोगों को पद किस प्रकार दिखाएगा। And next question, सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण की बागियां किस प्रकार महकाएंगे। This type of questions you can get it for the 3 marks questions. And so here सारांश is important. And next 3 marks questions also you can get it from the poems. So हम भारतवासी कविता मुख्य रूप से किस भावना को लेकर आता है? हम भारतवासी लेसन देशभक्ति की भावना को लेकर आती है। इस प्रकार देशभक्ति की भावना अपने दिल में रखने के लिए मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। ఉల్లంపర్ మాన్సూర్ స్కూల్లో అటు డిగ్రీ క్లాసులు ఇటు ఐఐటి క్లాసులు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ స్కూల్ నుండి 10 మంది డాక్టర్లు, 8 మంది చార్టర్డ్ అకౌంట్లు, అనేక మంది ఐఐటి, ఎన్ఐటిలో చదివిన ఇంజనీర్లు ఉన్నారు. అంతేకాదు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో 10 రకాల కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లోని విజయకేతనం ఎగరేశారు. 4 స్టేట్ ఫస్ట్లు, 40 టాప్ 10 ర్యాంకులతో పాటు 13 మంది గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఒత్తిడి లేని విద్యను అందిస్తూ అటు జాతీయ స్థాయి స్పోర్ట్స్ ర్యాంకులతో పాటు ఇటు ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ ఉల్లంపర్ మాంటిసోరీ స్కూల్.